Assalamu alaikum and welcome to AFW Mentor. In this video, I will try to explain the introduction part of John Perkins' book, The New Confessions of an Economic Hitman, with Urdu explanation, and also I will provide the difficult vocabulary with their meaning. So grab a cup of tea and let's jump into it. Who are economic hitmen? ये economic hitmen कौन है? Economic hitmen are highly paid professionals who cheat countries around the globe out of trillions of dollars. They funnel money from the World Bank, the US Agency for International Development, and other foreign aid organizations into the coffers of huge corporations and the pockets of a few wealthy families who control the planet's natural resources. Their tools include fraudulent financial reports, rigged elections, payoffs, extortion, sex, and murder. They play a game as old as empire, but one that has taken on new and terrifying dimensions during this time of globalization. I should know I was an EHM. इकोनॉमिक हिटमैन बहुत ज़्यादा मुआवजा लेने वाले पेशावर हैं जो दुनिया भर के ममालिक को खरबों डॉलर से धोखा देते हैं। वो वर्ल्ड बैंक, यूएसएड और दीगर गैर मुल्की इमदादी तंजीमों से पैसा बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के ख़जाने और चंद दौलतमंद ख़ानदानों की जेबों में डालते हैं जो इस प्लानट की नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। इनके टूल्स में क्या है? जाली मालियाती रिपोर्ट्स शामिल हैं, धांधली ज़दा इंतखाबात, अदायगियाँ, भत्ताखोरी, सेक्स और मर्डर शामिल है। वो सल्तनत की तरह पुराना खेल खेलते हैं, लेकिन एक ऐसा खेल जिसने आलमगीरियत के इस दौर में नई और खौफनाक जहतें इख्तियार की हैं। मुझे मालूम होना चाहिए मैं एक इकोनॉमिक हिटमैन था। Now this is a bit introduction of this book. The New Confessions of an Economic Hitman by John Perkins is a memoir that exposes how economic hitmen shape the world through debt, corruption and exploitation. ये बुक एक उसकी बायोग्राफी है। मेमोir कहते हैं बायोग्राफी को जो एक शख्स ने अपनी पर्सनल नॉलेज पे लिखा हो। ये क्या करती है? एक्सपोज करती है कि इकोनॉमिक हिटमैन कैसे दुनिया को शेप करते हैं, कर्जों के जरिए, करप्शन के जरिए और एक्सप्लॉयटेशन के जरिए, इस्तेसाल के जरिए। दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 47 चैप्टर्स। इसके 47 चैप्टर्स हैं और जो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट, द न्यू कन्फेशंस. So let's start the text from here. I am haunted every day by what I did as an economic hitman. I am haunted by the lies I told back then about the World Bank. I am haunted by the ways in which that bank, its sister organizations, and I empowered US corporations to spread their cancerous tentacles around the planet. I am haunted by the payoffs to the leaders of poor countries, the blackmail and the threats that if they resisted, if they refused to accept loans that would enslave their countries in debt, the CIA's jackal would overthrow or assassinate them. मैं हर रोज़ इस बात से परेशान हूँ जो मैंने बतौर इकोनॉमिक हिटमैन किया। मैं उन झूठों से परेशान हूँ जो मैंने उस वक्त वर्ल्ड बैंक के बारे में कहे थे। मैं उन तरीक़ों से परेशान हूँ जो इस बैंक ने और इस जैसी तंजीमों ने और मैंने यूएस कॉरपोरेशंस को अपने कैंसर नुमा इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया में फैलाने का इख्तियार दिया। मैं गरीब ममालिक के लीडरों को मिलने वाली अदायगियों, ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान हूँ कि अगर उन्होंने मज़ाहमत की, अगर वो कर्जे लेने से इनकार कर दें जो उनके ममालिक को कर्जों में डूबे हुए गुलाम बना देंगे, तो CIA की जैकल्स यानी अमेरिकन की जो एजेंसी है CIA के, उसके एजेंट्स इनका तख्ता उलट देंगे या इन्हें कत्ल कर देंगे। I wake up sometimes to the horrifying images of heads of state, friends of mine, who died violent deaths because they refused to betray their people, like Shakespeare's Lady Macbeth. I try to scrub the blood from my hands, but the blood is merely a symptom. मैं कभी कभी सरबराहाने मुमलकत की खौफनाक तस्वीरों पर जागता हूँ। मेरे दोस्त जो पुरतशद्दुद मौत के मुंह में चले गए क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को धोखा देने से इनकार किया। शेक्सपियर की लेडी मैकबेथ की तरह मैं अपने हाथों से खून साफ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खून महज एक अलामत है। The treacherous cancer beneath the surface, which was revealed in the original confessions of an economic hitman, has metastasized. It has spread from the economically developing countries to the United States and the rest of the world. It attacks the very foundations of democracy and the planet's life support system. वो जो एक ट्रेचरस कैंसर था, वो जो एक डेंजरस किस्म का कैंसर था, वो जो इन्फ्लुएंस था यूएस कॉरपोरेशंस का, जो बिनीथ द सरफेस जो किसी हद तक महदूद था, जिसका इंकशाफ
ओरिजिनल कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन में किया गया है, हैज़ मेटास्टिसाइज्ड, ये फैल चुका है। ये इक्तिसादी तौर पर तरक्की पजीर ममालिक से अमेरिका और बाकी दुनिया तक फैल चुका है। ये जमहूरियत की बुनियादों और प्लानट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हमला करता है। All the EHM and Jekyll tools, false economics, false promises, threats, bribes, extortion, debt, deception, coups, assassinations, unbridled military power are used around the world today, even more than during the era I exposed more than a decade ago. Although this cancer has spread widely and deeply, most people still aren't aware of it. Yet all of us are impacted by the collapse it has caused. It has become the dominant system of economics, government and society today. ये तमाम इकोनॉमिक हिटमैन और ये जो जैकल टूल्स हैं, जैसे कि फॉल्स इकोनॉमिक्स, झूठी मुआशियात, झूठे वादे, धमकियाँ, रिश्वतें, भत्ताखोरी, कर्ज, धोखा, बगावतें, कत्लो गारत, बेलगाम फौजी ताकत आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। उससे भी ज़्यादा उस दौर में जब मैंने इनको आज से कोई 10 साल पहले एक्सपोज किया था, इनका इंकशाफ किया था। अगरचे ये कैंसर बड़े पैमाने पर और गहराई में फैल चुका है, लेकिन ज़्यादातर लोग अब भी इससे वाकिफ नहीं है। इसके बावजूद हम उस नुकसान से मुतासिर हुए जो इसने किया है। ये आज मुआशियात, हुकूमत और मुआशरत का गालिब निज़ाम बन चुका है। Fear and debt drive this system. We are hammered with messages that terrify us into believing that we must pay any price, assume any debt to stop the enemies who, we are told, lurk at our doorsteps. The problems come from somewhere else. Insurgents, terrorists, them. And its solution requires spending massive amounts of money on goods and service produced by what I call the corporatocracy. Vast networks of corporations, banks, colluding governments, and the rich and powerful people tied to them. We go deeply into debt. Our country and its financial henchmen at the World Bank and its sister institutions coerce other countries to go deeply into debt. Debt enslaves us and it enslaves those countries. खौफ और कर्ज इस निज़ाम को चलाते हैं। हमें ऐसे पैगामात के साथ मुसलसल धमकाया जाता है जो हमें ये यकीन करने में खौफज़दा कर देते हैं कि हमें दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कोई भी कीमत अदा करना होगी या कोई कर्ज अदा करना होगा जो हमारे ज़राए के मुताबिक हमारी दहलीज पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। जो प्रॉब्लम है वो किसी और जगह से आती है। मसलन ये जो बागी होते हैं, इंसर्जेंट्स, इनके ज़रिए, टेररिस्ट के ज़रिए, और दैम यानी कि ये जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। और इसके हल के लिए अशिया और खिदमात पर बड़े पैमाने पर रकम खर्च करने की ज़रूरत है, जिसे मैं कॉर्पोरेटोक्रेसी कहता हूँ, जो कि एक वास्ट नेटवर्क है कॉरपोरेशंस का। बैंक्स, मिली भगत करने वाली हुकूमतें और अमीर और ताकतवर लोगों का वसीम नेटवर्क। हम कर्ज की गहराइयों में डूब जाते हैं। हमारा मुल्क और इसके आलमी बैंक और इसके मावन अदारे दूसरे ममालिक को कर्ज़ों की गहराई में जाने पर मजबूर करते हैं। कर्ज हमें गुलाम बनाता है और ये उन ममालिक को गुलाम बनाता है। These strategies have created a death economy, one based on wars or the threat of war, debt and the rape of the earth's resources. It is an unsustainable economy that depletes at ever-increasing rates the very resources upon which it depends, and at the same time poisons the air we breathe, the water we drink, and the food we eat. Although the death economy is built on a form of capitalism, it is important to note that the word capitalism refers to an economic and political system in which trade and industry are controlled by private owners rather than the state. It includes local farmers, markets, as well as this very dangerous form of global corporate capitalism, controlled by the corporatocracy, which is predatory by nature, has created a death economy and ultimately is self-destructive. इन स्ट्रेटजीज यानी इन हिकमत अमलियों ने एक डेथ इकोनॉमी क्रिएट की है जो बेस करती है जंगों के ऊपर और जंग की धमकियों के ऊपर, कर्ज पर, एंड द रेप ऑफ अर्थ रिसोर्सेज और ज़मीन के जो रिसोर्सेज हैं उनके मिसयूज़ पे। ये एक गैर पायदार इकोनॉमी है जो मुसलसल बढ़ते हुए रेट्स पर उन रिसोर्सेज को ख़त्म करती है जिस पर ये इन्हिसार करते हैं, और साथ ही उस हवा को भी जहर आलूद करती है जिस पे हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो फूड हम खाते हैं।
अगरचे ये डेथ इकोनॉमी एक कैपिटलिज्म की फॉर्म पर बनाई गई है। यहाँ पे ये भी नोट करना ज़रूरी है कि जो वर्ड कैपिटलिज्म है वो रेफर करता है एक इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को, जिसमें ट्रेड और इंडस्ट्री को एक प्राइवेट ओनर्स कंट्रोल करते हैं। इसमें लोकल किसानों की मार्केट्स के साथ साथ ग्लोबल कॉरपोरेट कैपिटलिज्म की एक इंतहाई खतरनाक शक्ल भी शामिल है, जिस पर कॉरपोरेटोक्रेसी का कंट्रोल है, जो कि बाय नेचर एक शिकारी है, जिसने ये डेथ इकोनॉमी को पैदा किया और अल्टीमेटली ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, तबाहकुन है। I decided to write the new confessions of an economic hitman because things have changed so much during this past decade. The cancer has spread throughout the United States as well as the rest of the world. The rich have gotten richer and everyone else has gotten poorer in real terms. मैंने द न्यू कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन लिखने का फैसला किया क्योंकि इस पिछली दहाई के दौरान चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। कैंसर पूरे अमेरिका के साथ साथ बाकी दुनिया में भी फैल चुका है। अमीर तर हो गए हैं और बाकी सब हकीकी मानों में गरीब तर हो गए हैं। A powerful propaganda machine owned or controlled by the corporatocracy has spun its stories to convince us to accept a dogma that serves its interests, not ours. These stories contrive to convince us that we must embrace a system based on fear and debt, accumulating stuff and dividing and conquering everyone who isn't us. The stories have sold us the lie that the EHM system will provide security and make us happy. एक पावरफुल प्रोपेगेंडा मशीन जिसको कॉर्पोरेटोक्रेसी ऑन करती है और कंट्रोल करती है, उसने अपनी कहानियां बयान की हैं ताकि हमें एक ऐसे अकीदे, एक ऐसे डोगमा को कबूल करने पर आमादा किया जाए जो उसके मफादात को पूरा करता है, हमारे नहीं। ये कहानियां हमें इस बात पर कायल करने की कोशिश करती हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट करें जो फेयर और डेप्थ पर हो, जिसमें हम थिंग्स को एक्वायर करें और हर एक को सब्जुगेट करें, सबको कंट्रोल करें, जो कि हम नहीं हैं। इन कहानियों ने हमें ये झूठ बेचा है कि इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम हमें सिक्योरिटी फराहम करेगा और हमें खुश करेगा। Some would blame our current problems on an organized global conspiracy. I wish it were so simple. Although, as I point out later, there are hundreds of conspiracies, not just one grand conspiracy, that affect all of us. This EHM system is fueled by something far more dangerous than a global conspiracy. It is driven by concepts that have become accepted as gospel. We believe that all economic growth benefits humankind, and that the greater the growth, the more widespread the benefits. Similarly, we believe that those people who excel at stoking the fires of economic growth should be exalted and rewarded, while those born at the fringes are available for exploitation. And we believe that any means, including those used by today's EHMS and jackals, are justified to promote economic growth, preserve our comfortable, affluent Western way of life, and wage war against anyone who might threaten our economic well-being, comfort, and security. कुछ हमारे मौजूदा मसाइल का इल्ज़ाम एक मुनज़्ज़म आलमी साजिश पर डालेंगे। काश ये इतना सादा होता। अगरचे कि जैसे कि मैंने पहले बताया, सैकड़ों साजिशें हैं, सिर्फ एक अजीम साजिश नहीं जो हम सबको मुतासिर करती है। ये EHM निज़ाम किसी आलमी साजिश से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ से हुआ है। उन कंसेप्ट से आगे बढ़ा है, उन कंसेप्ट की वजह से आगे बढ़ा है जो इंजील की तरह काबिल कबूल हो चुके हैं। हमारा मानना है कि जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है ये इंसानों को फ़ायदा देगी, और जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होंगे। इसी तरह वी बिलीव, हम ये यकीन करते हैं कि जो लोग मुआशी तरक्की की आग भड़काने में महारत रखते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, उनको इनाम मिले और उनको हम ऊंचा करें, यानी उनका मतलब उनका स्टेटस ऊंचा करें। और इनके अलावा जितने भी लोग हैं जो किनारों पे कर दिए जाते हैं, वो किस चीज़ के लिए अवेलेबल है? वो उनकी एक्सप्लॉयटेशन के लिए अवेलेबल है। और हम ये समझते हैं कि जितने भी मीन्स हैं, ये ज़रिए हैं, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम और आजकल के जैकल्स, CI के, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, हमारी कंफर्टेबलनेस को प्रिजर्व रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, हमारा जो वेल्दी वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ है इसको बरकरार रखने के लिए, और जो भी हमारी इकोनॉमिक को थ्रेट करेगा, हमारी इकोनॉमी के लिए एक धमकी बनेगा, उसके खिलाफ जंग करने के लिए, और हमारी वेल बीइंग, हमारे आराम और हमारी हिफाजत के लिए
ये सारे तरीके जायज़ है। In response to readers' request, I have added many new details and accounts of how we did our work during my time as an EHM, and I have clarified some points in the previously published chapters. More importantly, I have added an entirely new part 5 which explains how the EHM game is played today, who today's economic hitmen are, who today's jackals are, and how their deceptions and tools are more far-reaching and enslaving now than ever. Also, in response to readers' request, Part 5 includes new chapters that reveal what it will take to overthrow the EHM system and specific tactics for doing so. रीडर्स के रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में मैंने बहुत सी नई एक्सप्लेनेशंस और अकाउंट्स इसमें शामिल किए हैं कि हमने कैसे अपना काम किया मेरे वक़्त में एज इकोनॉमिक हिटमैन। और मैंने कुछ पॉइंट्स को भी क्लियर किया है जो मैंने पहले कुछ चैप्टर्स में जो पब्लिश हुए थे उनमें लिखे थे। और मोर इम्पोर्टेंटली मैंने इसमें एक नया पार्ट शामिल किया है, पार्ट 5, जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि इकोनॉमिक हिटमैन की गेम कैसे खेली जाती है और आजकल के इकोनॉमिक हिटमैन कौन है और आजकल के जैकल्स कौन है, कैसे उनके धोखे और उनके टूल्स जो हैं वो मोर फार रीचिंग है, हमारी पहुंच से दूर हैं और कैसे हमें गुलाम बना रहे हैं। रीडर्स की ही रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में मैंने इसमें एक नया पार्ट 5 शामिल किया है जिसमें नए चैप्टर्स हैं जो ये रिवील करते हैं कि इस इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए मखसूस हमारी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या होगी। This book ends with a section titled Documentation of EHM Activity 2004 to 2015, which complements my personal story by offering detailed information for readers who want further proof of the issues covered in this book or who want to pursue these subjects in more depth. इस बुक का एंडिंग टाइटल है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ EHM एक्टिविटी 2004 to 15। ये बुक कॉम्प्लीमेंट्स करती है उसकी पर्सनल स्टोरी पर और एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है उन रीडर्स को जो फर्दर प्रूफ चाहते हैं जो इश्यूज इस बुक में लिखे गए हैं और जो अपने सब्जेक्ट्स को मोर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मोर गहराई में इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। Despite all the bad news and the attempts of modern day robber barons to steal our democracy and our planet, I'm filled with hope. I know that when enough of us perceive the true workings of this EHM system, we will take the individual and collective actions necessary to control the cancer and restore our health. The new Confessions of Economic Hitmen reveals how the system works today and what you and I, all of us, can do to change it. रॉबर बैरन्स वो लोग होते हैं जो अमीर बने होते हैं इलीगल बिजनेसेस के जरिए। अच्छा, हम बुरी खबरों और मॉडर्न दौर के ये जो रॉबर बैरन्स हैं हमारी जमहूरियत और हमारे प्लैनेट को चुराने की कोशिशों के बावजूद मैं इस उम्मीद से भरा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि जब हम में से काफ़ी लोग इस EHM सिस्टम के हकीकी काम को समझेंगे तो हम इस कैंसर पर काबू पाने और अपनी सेहत को बहाल करने के लिए इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस लेंगे। जो न्यू कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन है ये रिवील करती है कि हाउ सिस्टम वर्क्स टुडे, आज ये सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे आप और मैं और हम सब इसको बदल सकते हैं। Tom Paine inspired American revolutionaries when he wrote, "If there must be trouble, let it be in my day, that my child may have peace." These words are so important today as they were in 1776. My goal in this new book is nothing less than Paine's, to inspire and empower us all to do whatever it takes to lead the way to peace for our children. टॉम पेन लिखता है, अगर कोई मुसीबत आनी है तो उससे मेरे दिनों में रहने दो ताकि मेरे बच्चे को सुकून मिले। वो अल्फाज आज भी उतने ही अहम है जितने कि वो 1776 में थे। इस नई किताब में मेरा मकसद पेन से कम नहीं है। हम सबको हौसला अफजाई और बाख्तियार बनाना है कि हमारे बच्चों के लिए अमन की राह पर गामजन होने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करें। So here the introduction part comes to an end. Thanks for watching and subscribe AFW Mentor for more videos. In the next video we will cover the chapter 1.